Today we start a new topic of partial differential equation, that is separation of variables. Last time we have discussed Charpit methods and standard forms of partial differential equation of first order. Now today we start separation of variables. So we see that the most important partial differential equation is defined as RR plus SS plus TT plus PP plus QQ plus ZZ is equal to function of XY. This is the second order linear partial differential equation where capital R, S, T, P, Q, Z and small f, all these are functions of x and y, whereas small p, we know that del z del x, small q del z del y, small r del 2z over del x square, small s del 2z over del x del y, small t del 2z over del y square. So these are the notations. Now here the equation 1 can be solved by separating the variables. Variables को separate करके solve करना. So we here assume that z is equal to xx into yy. ये हमने assumption किया ये देखते हुए कि इसमें x है और y है, तो हमने assume किया कि let z is equal to xs into yy. Then we put this equation 2 in equation 1. We get the form. Finally we get 1 by x f d x is equal to 1 by y g d dash y. Small capital D means d over d dx, d dash means d over dy. Differential with respect to x and d dash means differential with respect to y. तो ये अपन यहाँ पे समझे इस चीज को. तो मेनली तो हमारा ये सॉल्यूशन है. z इक्वल एक्स एक्स वाई वाई हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया जिससे कि x और y को सेपरेट करने के लिए. फिर इसको इसमें पुट किया, पुट करने में ये स्थिति बनी सी. सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x y क्या है यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो two sides of 3 equation 3 here will be equal only when each is a constant. ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं, ये एक तरफ x का फंक्शन है दूसरी तरफ y का फंक्शन है and both are equal. तो these two functions are equal only when each is equal to a constant. तो ये दोनों चीजें constant equal हो. Say it is lambda, हमने मान लिया lambda है, तो 1 by x f dx is equal to 1 by y g d dash y is equal to lambda. तो lambda मान लिया तो इसको ले अपन क्या हो जाएगा f dx, x को दे देंगे तो lambda x, ऐसे ही g d dash y, y को दे देंगे तो lambda y. तो this is equation 5. Now equation 5 can be solved by the method of ordinary differential equation. अब क्योंकि equation 5 क्या दिख रहा है अपने को, now these equations become ordinary differential equation and can be solved easily by using previous methods we already discussed. तो कुल मिला के हमारा ये मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें कि अपन ये अलग अलग फंक्शन अज्यूम करेंगे. मेनली तो ये है z इक्वल x x y y पुट करेंगे, x को एक तरफ करेंगे y को एक तरफ करेंगे. दोनों फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब किसी एक कांस्टेंट इक्वल माने जाएंगे. फिर इनको अलग लेकर सॉल्व करना है हमें, देन वी गेट द सॉल्यूशन. हियर in your syllabus there are 3 types of equations. One is wave equation, second is heat equation and third is Laplace equation. So first we take wave equation. So what is wave equation? Wave equation is defined as del square u is equal to 1 upon c square del 2u or del t square. This is the wave equation. If you write one dimensional wave equation, then this equation will become del 2u or del x square is equal to 1 upon c square del 2u और del t square. सिंपल है. तो u का x रिलेशन में आ जाएगा केवल. सिमिलरली टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये हो जाएगी del 2u del x स्क्वायर प्लस del 2u और del y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो वही टर्म है 1 upon c स्क्वायर del 2u और del t स्क्वायर. ऐसे थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करें तो इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी बाद में प्लस del 2u और del d स्क्वायर. ये हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, थ्री डायमेंशनल है ना वेव इक्वेशन. यदि हम इसकी बात करें
तो उसमें एक और टर्म ये ऐड हो जाएगी यहाँ पर, अदरवाइज तो दिस इज द 2 डायमेंशनल, दिस इज 1 डायमेंशनल. बट हियर इन आवर सिलेबस देयर इज 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन. So we start by taking this equation example by separating the variables. By separating the variables, show that one dimensional wave equation is del 2z or del x square is equal to 1 upon c square del 2z or del y square has the solution of the form किस टाइप की है, a into exponential bracket plus minus iota nx comma plus minus iota n ct where a and n are constants. हमें प्रूव करना है कि ये 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इसको सोल्व किया जाए तो इसका फॉर्म इस टाइप का फॉर्म आता है. सो वी स्टार्ट बाय सॉल्विंग यूजिंग दिस मेथड सॉल्यूशन. तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या है, del 2z और del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon c स्क्वायर del 2z और सॉरी एक मिनट, del 2z और y, ये t है यहाँ पे, y नहीं है, दिस इज t, दिस इज t, ये ना अपना राइट हैंड में t है. तो इक्वेशन क्या है अपनी, del 2z और del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon c स्क्वायर del 2z और del t स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1. So we assume this solution here x and t are independent variables. So we assume the solution z is equal to xx into tt. जैसे ये माना था अपन ने xx yy, तो yy की जगह tt हो जाएगा, तो xx tt. Substituting this solution 2 in 1 में पुट करो आप, तो 2 दफा डिफरेंस करो उसको x रिलेशन में, तो t d2x और dx स्क्वायर. अब चूंकि सिंगल वेरिएबल है, x केवल x पे डिपेंड कर रहा है, t केवल t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके डिफरेंसेस जो भी होंगे इनके वो ऑर्डिनरी होंगे, ध्यान रखना ऑर्डिनरी. अब पार्शियल नहीं है यहाँ पर, तो मैंने z की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो t कांस्टेंट और x का 2 दफा किया तो d2x और dx होता है प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर. फिर del 2z और del t स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो del 2z और del t स्क्वायर क्या निकलेगा, x एज इट इज और d2t और dt स्क्वायर. तो यहाँ से क्या है, ऑर्डिनरी इक्वेशन बन गई अभी, ODE आ गई अपने पास में, ध्यान रखना है. तो और x को इधर दे दिया हमने, तो 1/x d2x और dx स्क्वायर, t को उधर दिया तो 1 upon c स्क्वायर t d2t और dt स्क्वायर. नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ t. सो लेट अस अज्यूम दैट बोथ आर इक्वल टू द कांस्टेंट दैट इज माइनस n स्क्वायर. यहाँ पे हमने लिया इसको देखते हुए कांस्टेंट माइनस n स्क्वायर. इट इज आवर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन अस बिकॉज कांस्टेंट इज आर्बिट्रेरी. सो वी टेक दिस कांस्टेंट माइनस n स्क्वायर. तो टेकिंग दिस एंड दिस, तो क्वेश्चन क्या बनेगी, d2x और dx स्क्वायर प्लस n को x को यहाँ दे देंगे तो प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0. पहली इक्वेशन दी होगी इसको लेकर के साथ, दूसरी इक्वेशन यहाँ से इसको लेंगे साथ में, तो d2t और dt स्क्वायर और ये c स्क्वायर t उधर जाएगा प्लस ले लेंगे इधर आकर के, तो प्लस n स्क्वायर c स्क्वायर t इक्वल टू 0. तो सिंपल इक्वेशन बन गई दोनों, बोथ आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. सो द सॉल्यूशन ऑफ 4 and 5 आर इजीली ऑब्टेन्ड. काफ़ी इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं अपने, CF निकलेगा, PI निकलेगा नहीं. तो पहला इसकी जो है, इसके रूट्स के क्या है, प्लस माइनस आयोटा nx, इसके रूट है प्लस माइनस आयोटा nc. तो इसके रूट जो है, तो इसके हिसाब से ये जो पहला सॉल्यूशन जो निकलेगा इजीली, c1 ले लिया अपन तो e की पावर प्लस माइनस आयोटा nx, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है t इक्वल टू आ जाएगा c2 e की पावर प्लस माइनस आयोटा nct. दोनों सॉल्यूशंस इसके आ जाएंगे यहाँ पर, ये t स्मॉल में है. तो hence from equation 2 and 6, 2 ये था अपना सॉल्यूशन जो अज्यूम किया था और 6 ये था. तो पुट हियर फाइनल वी गेट zx t is equal to a एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट प्लस माइनस आयोटा nx कॉमा प्लस माइनस आयोटा nct. कुल मिला के दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करी हमने, और जो c1 c2 है उसको मैंने a से नोट कर दिया. तो फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन which is the desired solution as given in the example. So this is the one dimensional wave equation. Next time we will take heat equation. Thank you.